It's my opportunity to introduce today's resource person, Dr. Savita Kumari ji. It's my privilege to introduce her in front of the teachers on the virtual platform. So I take that privilege to introduce Dr. Savita Kumari ji. Dr. Savita Kumari is currently the Senior Assistant Professor in the Department of History of Art at National Museum Institute of History of Art. This is the prestigious institute of India in terms of art and culture, conservation and museology, New Delhi. She has been engaged in research and teaching since 2006. She has coordinated several national and international conferences, seminars, workshops, capacity building programs, exhibitions, and field visits. At present, she is engaged in the art history enrichment program for state school teachers and students. She also worked as one of the core members in the collaborative project Cham Sculptures from Vietnam and its interface with the Indian art, where she published a research catalogue of 50 sculptures from collection of the Nung Museum of Cham Sculpture, Vietnam. She has also worked as assistant curator in the National Gallery of Modern Art, another prestigious and premier institution of India, and was also involved with the Narivada project of Indira Gandhi National Center for Art, IGNCA. She has been awarded prestigious national and international fellowship for her doctoral research work from Indian Council of Historical Research, another prestigious fellowship, Charles Walsh India's Trust Grant for Research and Visit, UK Travel Award, Nehru Trust for Indian Collections at the Victoria and Albert Museum. In 2015, she received CAA Getty International Travel Grant to participate in the College of Association 103rd Annual Conference in New York, and many more. She has authored books and several research papers in addition to her contribution to journals and exhibition catalogs. Thank you, ma'am. Thank you Hope very your much knowledge will for the enrich our introduction. teacher participants. On behalf of 90 participants from 12 different states of India, I welcome you on that virtual platform. And ma'am, that is a group of 90 teachers from 12 different states of India, like mini India, we can say. Now over to you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Dr. Sandeep ji, for inviting me. And I look forward to speaking to this great audience from across the country. So, my lecture is on the sculptural heritage of India. And uh, I will start with a few fine examples from Indus Valley civilization. And let us see some of the finest work of Indian sculpture, which is dating back to 5,000. It was created 5,000 years ago, and India. I'm talking about Indian subcontinent of post independent period. So this is two sculptures which you may have seen many times in the books. This is famous dancing girl, which was discovered in Mohenjo-daro, which is now in Pakistan, but earlier it was part of India. And then we have the statue of a priest king. What is interesting is that, like, all these identification are based on conjectures, because uh, we did not. This the script of Indus Valley civilization is yet to be deciphered. तो आप जैसे कि देख सकते हैं, so this is the dancing girl sculpture from Indus Valley civilization, and when you look at the form, it's a very small piece, very small sculpture, but very meticulously created in the lost wax process. So we know the technical superiority of the time, and the sculpture got name of dancing girl because of our posture. जैसे ये खड़ी है ना अपने कमर पे हाथ रख के, तो जो जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया उन्होंने इसको नाम दिया डांसिंग गर्ल। और आज भी जो भारत की खूबसूरती ये है कि जो हमारी ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी है वो आज भी हमें देखने को मिलती है।
You can look at her hands, it's full of bangles, and still in many parts of Rajasthan and Gujarat, we have communities which uses bangles both on their shoulder as well as on the arm, on hands. Then we have this another sculpture which is called Priest King. Here again, when you look at the sculpture, it's very small, but very well delineated. आप इनका देखिए, जो शॉल है, शॉल बहुत सुंदर ट्रीफॉइल मोटिव के साथ सजा हुआ है। और इसको किंग क्यों कहते हैं, या ये हमें पता चलता है कि ये कोई ऊंचे वर्ग से रहा होगा ये व्यक्ति, एंड दैट इज विजिबल बिकॉज ऑफ द हेड बैंड। एक बैंड लगाया है और यहाँ पे जो सर्कल है इसके अंदर ओरिजिनली कोई प्रीसियस जेम रहा होगा जो अब सर्वाइव नहीं करता। तो हमें इंडस में बहुत फाइन कार्विंग देखने को मिलती है, मॉडलिंग देखने को मिलती है, और साथ साथ हमें इस तरीके के स्कल्पचर्स भी मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बहुत कुशल थे ह्यूमन फॉर्म को अच्छे तरीके से डिपिक्ट करने में, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि वो उन्होंने इस तरीके की मूर्तियां बनाई। तो ये जो टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हमें, मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं, इनको मदर गॉडेसेस कहा जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर इन मदर गॉडेसेस की वर्शिप का ट्रेडिशन अभी भी हमारे देश में बहुत स्ट्रांग है। और इसमें जो मॉडलिंग है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है। यहाँ पे जो टेराकोटा को इस्तेमाल किया गया है वो एप्लीक टेक्निक में किया गया है। बॉडी को बनाकर उसमें ज्वेलरी वगैरह चिपकाई गई है ऊपर ऊपर से। और इनका जो हेड्रेस है मदर गॉडेसेस का, जो जो मुकुट है, उसको उसकी साज सज्जा पे बहुत ध्यान दिया गया है। वो उनकी जो डिवाइन जो व्यक्तित्व है उसको सामने लेकर आता है। और टेराकोटा की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसकी परंपरा भी भारत में आपको आज भी देखने को मिलेगी। और मदर गॉडेसेस का ज्यादातर जो वर्शिप का कल्ट रहा है, इंडस वैली में हमें डिस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं, स्क्रिप्ट नहीं हम पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है कि क्यों बनाया जाता होगा, लेकिन अंदाजा है कि इनको ज्यादातर बच्चों की प्राप्ति के लिए, उनकी कुशलता के लिए इनकी वर्शिप की जाती होगी। तो वो तो हमने राउंड में स्कल्पचर देखा, 3 डायमेंशनल स्कल्पचर देखा। हमें स्कल्पचर रिलीफ फॉर्म में भी मिलते हैं। तो हमने स्कल्पचर इन राउंड देखा है, नाउ वी आर सीइंग द रिलीफ स्कल्पचर्स। और ये उस जमाने की करेंसी हुआ करती थी। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें अनुकरण है बहुत विभिन्न प्रकार के जानवरों का। इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि ये क्या सिंबलाइज करते होंगे। और ऊपर आप देखेंगे कि जो सील्स हैं ये एक्चुअली करेंसी के रूप में काम करती थी। और एक खूबसूरती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कि ये जो सील आपको, जो डायमेंशन आपको मिलेंगे लाहौर में, वही आपको मिल जाएगा धौलावीरा गुजरात में। एक बहुत ही यूनिफाइड, स्ट्रॉन्ग, सेंट्रलाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन रहा है ये। और हमारा जो पर्पस है इन सील्स को देखने का वो है इसके आर्टिस्टिक मेरिट्स को देखने का। तो ये जो सील देख रहे हैं आप, एक मिथिकल एनिमल है और उसको, उसकी सर पे सिर्फ एक सींग है। इसको यूनिकॉर्न सील कहते हैं और काफी फेमस है। और अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक स्कॉलर बात कर रही थी कि सन वर्शिप कैसे इवॉल्व हुआ और इस तरीके के जानवर साइबेरिया और कजाकिस्तान जैसे एरियाज में भी डिपिक्ट हो रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि क्या कनेक्टिविटी रही होगी सिविलाइजेशन की दुनिया के दूसरे कल्चर्स के साथ। और आप जानते हैं कि ट्रेड बहुत ही ये जो सिविलाइजेशन थी वो ट्रेड पर बेस्ड थी और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क रहा था, बोथ वाया लैंड और सी। और हमें इंडस वैली के ऑब्जेक्ट्स फार अवे प्लेसेस जैसे कि मेसोपोटामिया में या और इजिप्ट में भी देखने को मिलता है। तो जो दुनिया की जो प्राचीनतम सिविलाइजेशन थी उनका काफी एक दूसरे के साथ संपर्क रहा है। यहाँ पे देखेंगे बुल उनकी इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ये जो हम्प्ड बुल और हम्पलेस बुल दोनों ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सील है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 7 आकृतियां डिपिक्टेड हैं
और बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि शायद ये अर्ली रिप्रेजेंटेशन हो सप्त मातृका के कॉन्सेप्ट का, जहाँ पे भारत में मदर गॉडेसेस को वर्शिप करने का, अगर दुर्गा का कल्ट अभी बहुत ही प्रसिद्ध है, और सात मातृकाओं को वर्शिप किया जाता है, तो उसमें जो कहते हैं कि जो अर्लीस्ट एविडेंस अगर देखा जाए तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलती है। ये आपको सात फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत ही, ये दोनों जो सील में लेकर आई हूँ बहुत ही फेमस सील्स हैं, और ये पशुपति सील है। और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये यौगिक पोस्चर में है, और इसके सर पर एक क्राउन है जिसमें हॉर्न लगा हुआ है, एंड इसके चारों तरफ जो जानवर है वो बिल्कुल इसके नियंत्रण में है, मतलब वो यौगिक पोस्चर में है। और आप देखिए कि जो इतने वाइल्ड एनिमल्स है, लायन दिख रहे हैं आपको, एलिफेंट दिख रहा है, ये वाइल्ड एलिफेंट्स है, मगर बट ये परटर्ब नहीं है। तो अगेन इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये पशुपति शिव का स्वरूप है, और शिव को लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी मानते हैं। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस है शिव ऑफ लॉर्ड शिवा's वर्शिप। But again and again I'm saying that these are the script of Indus Valley Civilization, और ये क्योंकि इनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, हमें नहीं पता कि वास्तव में ये कंजक्चर किस हद तक सही है। मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ। ये वाला जो दूसरा इमेज है ये गिलगामेश मोटिव कहलाता है, और ये गिलगामेश मोटिव जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में। और यहाँ इस मोटिव की खास बात होती है कि एक आदमी अपने दोनों हाथों से दो बाघों को नियंत्रित कर रहा है। तो अगेन इस सील एक छोटी सी वस्तु है, बहुत ही छोटी, इसका साइज बस इतना सा होगा, मगर ये आपको बताता है कि कैसे आज से 5000 साल पहले विभिन्न जो सभ्यताएं थी उसका तालमेल रहा था, उसका ट्रेड रिलेशन रहा था। तो मेसोपोटामिया और इंडस वैली के सिविलाइजेशन में जो संपर्क रहा है उसका ये सबूत है। Let's show you the next one. इंडस वैली से हमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, मगर ये ऑब्जेक्ट्स और ये जो स्कल्पचरल फॉर्म्स है, ये खिलौने के फॉर्म में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का पता चलता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता चलती है, देखिए जो जो पहिए हैं खिलौनों के वो सॉलिड है। तो अभी तक हम आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और अभी तक जो स्पोक्ड व्हील है ना, जो जो आज हम व्हील इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत सारे लाइन्स होते हैं, स्पोक व्हील्स होती है, वो अभी तक आया नहीं है, उसका आविष्कार अभी नहीं हुआ। तो ये जो मूर्तियां हैं, छोटे छोटे जो ये खिलौने हैं, वो हमें सभ्यता के विकास के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम मूव करते हैं बुद्धिस्ट आर्ट की तरफ। और हम बात कर रहे थे अभी 2600 बीसी की। 2600 बीसी से 1500 बीसी इंडस वैली का काल माना जाता है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है 1500 टू ऑलमोस्ट 1000 बीसी, वो वैदिक पीरियड माना जाता है। और वैदिक पीरियड में की जो जो मटेरियल एविडेंस है वो हमें ज्यादा नहीं मिले हैं। और अब बट वो समय था जब बहुत जो भारत के जो महानतम लिटरेचर है, जो वेदास है, 4 वेद हमारे हैं, उसकी रचना उस वक्त हुई, मगर हमें जो स्कल्पचर है वो नहीं मिलते ज्यादा। तो इतिहासकारों का मानना है कि शायद इस दौरान फ्रेजाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता होगा जो कि सर्वाइव नहीं किया, जैसे लकड़ी से बनी वस्तुएं या कच्ची मिट्टी से बनी वस्तुएं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए। बाद में जो हमें सबसे अच्छे एविडेंसेस मिलते हैं, मटेरियल एविडेंसेस मिलते हैं, वो मॉडर्न पीरियड से मिलते हैं, जो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन माना जाता है। तो मॉडर्न पीरियड में मैं कुछ बुद्धिस्ट इमेजेस फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड्स में थोड़ा सा बुद्धिस्ट
स्कल्पचर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हम सब इसको जानते हैं, इस मूर्ति को। ये अशोक का फेमस लायन कैपिटल है। आज ये भारत के सारनाथ म्यूजियम में, जो कि वाराणसी के पास है, वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और इस मूर्ति में देखेंगे कि मैम, ये एक, हाँ जी Ma'am, can you tell me the period of the Mauryan dynasty during which the Buddhist art flourished? The थर्ड time सेंचुरी period? बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी। Okay, ma'am. Thank you. Yes. And this period is known for its very refined art. अब आप देखेंगे कि ये जो पिलर है आज भी इतना चमकता है। तो जो इसके शाइन है, जो पॉलिश है, वो आज तक बरकरार है। और ये मॉडर्न कलाकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले माना जाता था कि जो आर्ट ऑफ पॉलिश है वो शायद वेस्ट से आया, ग्रीक से आया, क्योंकि मॉडर्न रूलर्स का काफी कनेक्शन रहा है ग्रीक रूलर्स के साथ। मगर धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहां पे हमें पिलर्स मिले हैं जिसपे इस तरीके का पॉलिश है। तो अब तो माना जाता है कि ये जो 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 आर्ट, ये फाइन पॉलिशिंग का जो आर्ट था वो भारत में ऑलरेडी अवेलेबल था। एंड यू नेवर नो कि भारत से ही दूसरी जगह गया है ये। अब इस जो जो पिलर होता है, ये पिलर का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसको कैपिटल कहते हैं। और इसके जो 3 प्रमुख भाग हैं वो है बेस। अब बेस में आप देखेंगे कि बेस का जो पार्ट है वो एक इन्वर्टेड लोटस के फॉर्म में है। और लोटस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। और भारत के जो महत्वपूर्ण धर्म है, सभी धर्मों में इसका एक खास स्थान है। उसके ऊपर जो हम पार्ट देखते हैं वो इसको ड्रम कहते हैं। पहले हमारा बेस था, बेस के ऊपर जो पार्ट है वो ड्रम है। और इस ड्रम पे 4 एनिमल्स को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे केवल 2 देख सकते हैं, एक बुल और एक एलिफेंट। मगर हमारे पास दूसरी तरफ एक हॉर्स और एक लायन भी है। ये जो है एनिमल्स, वो 4 डायरेक्शंस को दर्शाता है। हॉर्स वेस्ट को, बुल ईस्ट को, एलिफेंट साउथ और लायन नॉर्थ को। और ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के अलावा सिंबलाइज करता है पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। तो जो भी मूर्तियों में जो छोटी छोटी मोटिव्स देख रही है, जो जानवर है, केवल जानवर नहीं है बल्कि वो कुछ सिंबलाइज करते हैं, वो किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे ऊपर है 4 लायंस जो बैक टू बैक बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये क्या सिंबलाइज करता है। तो अशोक बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो एक तो बात होती है कि अशोक ने इस मूर्ति से दर्शाया कि कैसे बुद्धिज्म चारों दिशाओं में फैल रहा है। और दूसरा इतिहासकारों का मानना है कि इस मूर्ति से वो बुद्धिज्म की तो बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, मगर वो अपने चक्रवर्ती होने की भी बात कर रहे थे। तो जैसे बुद्ध लायन है अमंग ऑल द रिलीजियस लीडर्स, उसी प्रकार अशोक इज लाइक अ लायन अमंग ऑल द मोनार्क्स। और जिस प्रकार बुद्धिज्म चारों तरफ चारों दिशाओं में फैला हुआ है, उसी प्रकार अशोक का जो साम्राज्य है वो भी चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो अशोक के चक्रवर्ती होने को भी यह सिंबलाइज करता है। तो एक छोटी सी मूर्ति है, छोटी तो नहीं है, काफी विशाल मूर्ति है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। तो ये काफी सिंबॉलिक है। ये बुद्धिस्ट धर्म की बात भी करता है और अशोक के किनशिप की भी बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो गौतम बुद्ध थे, वो जो कर्म कांड होता है, जो हिंदुइज्म में उस वक्त काफी रिचुअलिस्टिक हो गया था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला था। और इनफैक्ट उन्होंने मूर्ति पूजा या यज्ञ और इस तरीके के रिचुअल्स का खंडन किया था। मगर जब उनकी मृत्यु के पश्चात ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपने जो रिलीजियस लीडर है उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और धीरे धीरे मूर्तियों का भी विकास होता है बुद्धिज्म में।
सर्वप्रथम बुद्ध को चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता था, क्योंकि मूर्ति बनाने की प्रथा नहीं थी बुद्धिज्म में। बुद्ध ने खुद इस बात का खंडन किया था। मगर फिर हम देखते हैं कि उनके पश्चात अराउंड थर्ड सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी बीसी में उनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने लग गए। तो बुद्ध को दर्शाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के प्रतीक हैं वो इस प्रकार है। स्तूप जो बौद्ध धर्म का जो बहुत महत्वपूर्ण वर्शिप का जो ऑब्जेक्ट है, जो कल्ट ऑब्जेक्ट है, वो है स्तूप। और इसको भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का सूचक मानते हैं। उसके बगल में आप देखते हैं धर्म चक्र। द सीक्रेट व्हील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिंबलाइजेस द टर्निंग ऑफ द टाइम। जब बुद्ध का आगमन हुआ, जब उनको इनलाइटनमेंट मिला और उन्होंने फर्स्ट सरमन डिलीवर किया, तो उसके बाद एक परिवर्तन आया समाज में, और उस परिवर्तन को इस चक्र के माध्यम से दर्शाते हैं। ये बुद्धिज्म का चक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है। तत्पश्चात जो बुद्ध पाद है, फुटप्रिंट, बुद्ध को के प्रेजेंस को उनके चरण पादुका के रूप में भी दर्शाया जाता था। और आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि जो बोध गया के बोधि में बोध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस चिन्ह के माध्यम से कलाकार बुद्ध के इनलाइटन होने की बात कर रहा है। छोटे छोटे सिंबल्स हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड फिर लास्ट में आप जो देखते हैं वहां पे भी जो डिवोटीज हैं वो बोधि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। और प्लस कई बार होता है कि जो छत्र होता है वो रॉयल्टी का सिंबल है। तो आप देखेंगे कि छत्र के नीचे कोई आदमी नहीं खड़ा, मगर छत्र है। तो जब छत्र देखते हैं तो वो अगेन भगवान बुद्ध के होने का प्रतिनिधित्व करता है। एन आइकॉनिक आर्ट बुद्धिज्म का जो सबसे अच्छे स्कल्पचरल एग्जांपल्स मिले हैं वो सांची से मिले हैं, और सांची और भारूत से मिले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्तूप के कॉम्प्लेक्स में आप एंटर करते हैं तो बहुत सुंदर तोरण है, द्वार है, और इस द्वार के आर्किट्रेव्स पे कार्विंग हो रखी है। वो कार्विंग पत्थर पे कार्विंग हो रखी है। देखिए सारे छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है वो बुद्ध के विभिन्न बुद्धिज्म के विभिन्न जो इवेंट्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड, उसको सिंबलाइज करता है। जातक कथाएं जो कि बुद्ध के प्रीवियस लाइफ से डील करता है, और अवदान जो बुद्ध के जीवन के जो विभिन्न घटनाएं हैं उसको दर्शाता है। तो ये सारे प्रतीकों के माध्यम से दिखाते हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक एग्जांपल है महाअभिनिष्क्रमण का, जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। तो अब सिद्धार्थ जब घर छोड़ते हैं तो देखिए कैसे कलाकार ने दिखाया है। यहाँ पर ये शहर है जो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वो बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति से पहले वो सिद्धार्थ हैं, वो एक प्रिंस है। तो ये प्रिंस जब सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं घर छोड़ने के लिए, तो ये आप देखिए पैलेस है। उसके पश्चात एक घोड़ा है, और घोड़ा के ऊपर लोगों ने एक छत्र, जो अटेंडेंट है उन्होंने छत्र लगाया हुआ है, मगर कोई राइडर नहीं है। तो क्योंकि प्रतीकात्मक कला है, अभी बुद्ध को इंसानों के रूप में व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो हम घोड़े को खाली देखते हैं। मगर क्योंकि यहाँ पर छत्र है तो हमें पता है कि वो अपने गृह का त्याग कर रहे हैं। और फिर अंत में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे घोड़ा दोबारा दिखाया है, और अंत में हमें बुद्ध पाद दिखता है। तो इसका मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अगेन आपको मैं ये एग्जांपल दिखा रही हूँ कि किस प्रकार ये जो चिन्ह है वो बुद्ध के सिद्धार्थ की जर्नी को दिखा रहा है। और जब वापस आता है वही घोड़ा, ये देखिए जब वापस आ रहा है तो उसके ऊपर ये छत्र नहीं है। तो अभी आप सिद्धार्थ वापस नहीं आ रहे, वो अपने इनलाइटनमेंट के मार्ग में
चले गए और उन्होंने गृह का त्याग किया। फिर ये सांची में ही दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मोटिव अभी आपको मैं दिखाऊंगी, ये बोधि ट्री है और बुद्धपाद, जो कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को दर्शाता है। अब हम कुछ घटनाएं देखेंगे कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किस प्रकार कलाकारों ने दर्शाया। तो यहाँ पर है, ये भरूच से है, ये 2nd सेंचुरी BC का स्कल्पचर है और यहाँ आप देखेंगे कि राउंड मेडालियन है, लेकिन एक छोटी सी जगह पे कलाकार ने अपनी बात बड़ी खूबसूरती से कर दी है। यहाँ पे 2 चीजें सबसे बड़े आकार की है, वो एक है क्वीन माया, जो बुद्ध की माता है, वो अपने शयन कक्ष में सो रही है, रात का समय है, आप देखिए सारी परिचारिकाएं गहरी नींद में है और रात को जो सामान चाहिए होता है, एक लैंप है यहाँ पे और एक पानी का पात्र है, तो ये इनका चेम्बर है जिसके अंदर ये चीजें हैं। और वो स्वप्न में एक बहुत बड़े हाथी को देखती है, मतलब एक सफेद हाथी को देखती है। तो ये जो सिंबलाइज करते हुए हाथी बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको कलाकार बड़ा दिखा रहा है और जो बाकी चीजें हैं उसको छोटी आकृति में दिखा रहा है। और ये माया, ये स्वप्न है कि एक महापुरुष का जन्म होने वाला है। हाथी को काफी अच्छा माना जाता है भारतीय परंपरा में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो। और इस तरह के हाथी को सपने में देखने का मतलब है कि एक माया के गर्भ में एक महापुरुष को वो गर्भ में धारण करने वाली है। ये मैं जो दूसरा सीन है वो भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है और आप देखिए यहाँ पे ये अमरावती से आ रहा है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है और ये जो मूर्ति है वो अब ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्वीन माया अपने शयन कक्ष में, देखिए जैसे यहाँ पे भरूच से सांची तक आते आते जब हम 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी एडी तक आते हैं तो कला और विकसित हो रही है। यहाँ पे माया को बहुत ही खूबसूरती से उसके पोस्टर को दर्शाया गया है। फिर उसके पश्चात आप देखते हैं कि ये स्वप्न देखती है, तो जब स्वप्न देखती है तो वो अपने पति सुद्धोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताती है। तो दूसरा जो सीन है, देखिए कैसे एक सीन में वो उन्होंने स्वप्न देखा, दूसरे सीन में यहाँ पे क्वीन माया बैठी है, राजा सुद्धोधन है और ये अपनी जो ये ब्राह्मण है इनको बुलाया गया है कि वो स्वप्न को इंटरप्रेट करे, इस प्रकार के स्वप्न का मतलब क्या है वो दिखाए। फिर जब वो बताते हैं कि एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है और फिर बाद में हम देखते हैं कि क्वीन माया जब लुम्बिनी गार्डन जा रही होती है, जब अपने मायके जा रही होती है, तो रास्ते में एक बगीचे में रुकती है और वहां सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई बच्चा नहीं दिखा रहा क्योंकि प्रतीकात्मक कला है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कोई बालक नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे जो इंद्र और अन्य देव हैं उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा वस्त्र रखा हुआ है। वो वस्त्र सिंबलाइज करता है कि वो जो माया का जब जन्म देंगी बच्चे को, तो ये जो देव हैं उसको इस वस्त्र पर रिसीव करेंगे। तो ये तो प्रतीकात्मक डिपिक्शन था बुद्ध का। अब मैं आपको 3 जो बुद्धिस्ट आर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। एक गांधार स्कूल जो आपका ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फ्लरिश हुआ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में। देन मथुरा स्कूल जो दिल्ली के पास ही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ वाराणसी के वाराणसी के पास है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। तो यहाँ 3 जगह जब बुद्ध को इमेज के रूप में दिखाया गया तो कैसे दिखाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जब बुद्ध की मूर्ति देखेंगे तो उसमें कुछ चिन्ह हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चिन्ह है उष्णीश। तो अब वो बुद्ध का जो, क्योंकि वो एक एस्थेटिक है, एक उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, तो उनके बालों को सॉफ्ट कर्ल में दिखाया जाता है और उसके ऊपर ज्ञान के प्रतीक एक प्रोट्यूबरेंस होता है, ऐसा कुछ निकला हुआ होता है, ऊंचाई होती है, उसको उष्णीश कहते हैं। फिर यहाँ पे जो मध्य में जहाँ आज भी हम बिंदी लगाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तो माना जाता है कि बुद्ध का यहाँ पे एक निशान था, उसको उड़ना कहते हैं। उनकी जो आईब्रोज है बहुत ही खूबसूरती से आर्च्ड फॉर्म में दर्शाई जाती थी। कान लंबे होते थे और हाथ भी, इनफैक्ट तो माना जाता है कि जो लंबे कान वाले व्यक्ति है वो
ये महान लक्षण है, ये महान पुरुष का लक्षण है। उनका लोअर लिप फुल आपको देखने को मिलेगा और जो उनका नेक है उस पे 3 फोल्ड दिखते हैं। तो ये सारे जो लक्षण है वो महापुरुष लक्षण होते हैं और कलाकार हर जगह के चाहे वो गंधार हो, मथुरा हो या सारनाथ हो, उन्होंने कोशिश की इन कैरेक्टर्स को अपने स्कल्पचर में दिखाने की। तो ये सो नाउ यू लुक एट दीज इमेजेस। यहाँ आप देखेंगे कि जो गांधार है, जो 3rd सेंचुरी सी का की ये प्रतिमा है गांधार से। और यहाँ पे देखिए वो जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया कि प्रोट्रूबरेंस है उशनीश, उनके जो बाल हैं वो वेवी है, कान थोड़े लंबे हैं और माथे पर एक बिंदी है। बाद में जो गुप्ता पीरियड में आते हैं हम 5th-6th सेंचुरी में, तो ये जो उड़ना मार्क है उस मार्क को बनाया नहीं जाता, मगर ये धारणा है कि वो है वहां पे। और जो कर्ल्स हैं वो ज्यादा सुंदर स्नेल शेप में हो गए हैं। और जो बुद्ध की मूर्ति को जो सबसे सुंदर स्वरूप दिया वो सारनाथ के कलाकारों ने दिया, जहाँ पे आध्यात्मिकता और कामुकता का बहुत ही सुंदर संगम देखने को मिलता है। आप देखिए कि बहुत ही सेंसुअस इमेज है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, ये जो आंखें झुकी हुई आंखें आपको दिख रही हैं और इनवर्ड लुकिंग जो एक्सप्रेशंस है वो इसको मेडिटेटिव क्वालिटी देता है। तो बड़ा ही स्पिरिचुअलिटी एंड सेंसुअसनेस का बहुत ही खूबसूरत अमालगमेशन है सारनाथ में बुद्ध के डिपिक्शन का। तो ये एक मूर्ति है बुद्ध की गांधार से। और जब गांधार की में जो बुद्ध की प्रतिमाएं देखेंगे हम, तो वो जो ग्रीक गॉड्स एंड गॉड्स हैं उससे मिलती जुलती है, क्योंकि जो एक समय था जब गांधार पर अलेक्जेंडर ने भी अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करी और वो लोग मॉडर्न रूलर्स से काफी क्लोज कांटेक्ट में भी थे। तो आप देखेंगे कि जब कलाकार को पहली बार बुद्ध का स्वरूप देना पड़ा, तो वो जो लोकल इन्फ्लुएंसेस थे उसको उसने लिया। तो आप ग्रीक इन्फ्लुएंस देख सकते हैं गांधार मूर्तियों में, जबकि मथुरा और सारनाथ में हमें इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यक्ष की प्रतिमाओं पर बुद्ध के स्वरूप को बनाया गया है। तो गांधार के कुछ खास जो फीचर्स है वो ये हैं कि जो हेलो होता है, जो प्रभा मंडल होता है बुद्ध के पीछे, उसकी महानता को दर्शाने के लिए, उनकी डिविनिटी को दर्शाने के लिए, वो प्लेन है। उशनीश काफी हेवी है। फिर हमें उड़ना मार्ग देखने को मिलता है, कान लंबे हैं, जॉ लाइन बहुत शार्प है। देन संघाटी जो वस्त्र है यहाँ पर गांधार में, क्योंकि गांधार एक ठंडी जगह है, तो जो शॉल ये बुद्ध पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं संघाटी, वो दोनों कंधों को ढकती है। और इनका एक हाथ में वो अपने जो संघाटी है, जो वस्त्र है, उसको पकड़े होते हैं, और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में, यानी कि प्रोटेक्शन। अभय ये वाला मुद्रा होता है, इसको प्रोटेक्शन का सिंबल मानते हैं। अब ये मथुरा कला का एक बहुत सुंदर इमेज है। अब आप देखिए कि जो क्लाइमेट है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है आर्ट को। गांधार में जो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए वो काफी मोटे हैं, मगर जो मथुरा में जो आप उनका संघाटी देख रहे हैं, जो ये वस्त्र है उसको संघाटी कहते हैं, वो काफी पतला है और उसमें बहुत ही फाइन लाइंस है। तो ये जो उस रीजन में जो मलमल मलमल को कैप्चर करने की कोशिश की है कलाकारों ने। और यहाँ पे जो अगेन गुप्तकालीन कला की ये खास बात है कि जो प्रपोर्शन है बॉडी का, वो बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकार ने दर्शाया है। और सबसे जो सुंदर इमेजेस मिलती है हमें बुद्ध की, जो बहुत मैंने बोला जो बुद्धिज्म में जो बिल्कुल इसेंस जो बुद्ध है बुद्धिज्म का, उसको कैप्चर करती है, वो सारनाथ से है। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन जो ध्यान मग्न है बुद्ध, उसको बहुत ही खूबसूरती से कलाकार ने दर्शाया है। उनका बॉडी बहुत वेल प्रोपोर्शनेट है। और जो संघाटी है, जो कपड़े उन्होंने पहने, वो बहुत ही फाइन मलमल को दर्शाता है। और उससे देख सकते हैं कि उससे उनके बॉडी के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं वो भी क्लियरली विजिबल हैं। जो कॉन्सेप्ट से देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम कैसे समझ पाते हैं, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुद्ध है, एक ये जो सिंबल है, दोनों एक सारनाथ से है राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में आपके हैं वो है गांधार से। अब क्योंकि गांधार में बुद्धिज्म को एडॉप्ट करने वाले
बाहर के लोग थे तो वो जो इसेंस है धर्म चक्र प्रवर्तन का वो नहीं समझ पाए। ये सिंबल है टर्निंग ऑफ द टाइम। जब वो पहला पहला अपना सरमन देते हैं सारनाथ में, उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो जब वो कहते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, तो क्या किया गांधार के कलाकार ने, उनको वाकई में दिखा दिया कि वो व्हील को टर्न कर रहा है। बट असल में ये बात नहीं थी, बात ये थी कि समय में परिवर्तन आया है। उसको सारनाथ के कलाकार ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि वो जब व्याख्यान कर रहे हैं, ये मुद्रा होती है व्याख्यान की, वो प्रवचन दे रहे हैं, तो ये समय बदलाव और परिवर्तन को सिंबलाइज करता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिटरल मीनिंग ले लिया और फिलॉसफी को नहीं समझ पाए गांधार में, वेयर सारनाथ में बहुत ही खूबसूरती से इस एपिसोड को दर्शाया गया है। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाल पीरियड में लेकर आती हूँ। पाल पीरियड 8वीं से 12वीं शताब्दी में ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेजर इवेंट्स है बुद्ध के लाइफ का, उसको बहुत ही खूबसूरती से कलाकार ने एक छोटे से स्टेले में दर्शाया है। ये प्रतिमा है, इस प्रकार की प्रतिमा, ये बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं होती है, बस इतनी सी प्रतिमाएं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो बुद्ध के 8 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट उनके लाइफ से उसको दर्शाया गया है। तो आप देखिए जो बीच में है सबसे पहले, तो वो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में है और ये इनके इनलाइटनमेंट को सिंबलाइज करता है। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अर्थ को छूकर गॉडेस अर्थ को बुलाते हैं कि विटनेस करें कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके चारों तरफ, इसके दोनों ओर हमें उनके जीवन से संबंधित अन्य दृश्य मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वीन माया है, आपने देखा वो गार्डन में खड़ी है, तो इसका मतलब बुद्ध का, सिद्धार्थ का जन्म हो रहा है। उसके ऊपर जो हम देखते हैं एपिसोड, ये व्याख्यान मुद्रा में है, जैसा कि मैंने आपको सारनाथ में दिखाया इस तरीके की मुद्रा में है। तो ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर जो एपिसोड है, यहाँ पे छत्र, उन्होंने छत्र दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो त्रैस तिमशा हेवन है, बुद्ध क्योंकि वो डिवाइन बीइंग है, वो बीच बीच में धरती और स्वर्ग दोनों जगह जाते आते रहते थे। तो उनकी, बुद्ध की माता जो है क्वीन माया, उनका जन्म बुद्ध के जन्म से 6 दिन बाद हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, सॉरी। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक समय वो त्रैतियमशा हेवन में जाकर अपनी माँ को प्रवचन देते हैं। तो जब वो हेवन से वापस आते हैं तो वो छत्र के साथ दिखाते हैं। ये जो सबसे ऊपर लेटे हुए हैं बुद्ध, वो महापरिनिर्वाण का सूचक है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। यहाँ पे एक छोटा सा हाथी है। तो जो जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध के जो भाई थे देवव्रत, वो बुद्ध को हराने की पूरी कोशिश करते थे। तो एक बार उन्होंने पागल हाथी को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, लेकिन वो मार नहीं पाया, इंस्टेड वो बुद्ध का भक्त हो गया। तो ये भी एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दर्शाते हैं। और यहाँ पर श्रावस्ती में जो उन्होंने जो मिरेकल्स परफॉर्म किए, ये उस घटना को सिंबलाइज करता है। और जो आखिरी है एपिसोड, यहाँ पे बुद्ध ध्यान मुद्रा में है और इनके हाथ में एक्चुअली एक बोल होता है, एक पात्र होता है, और ये दर्शाता है कि उनको हनी, जो एक बंदन है, उनको शहद ऑफर किया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ हनी बाय मंकी। ये 8 इवेंट्स हैं, इस छोटी सी मूर्ति में दर्शाई जाती है। और ये बार बार, ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट थे, तो कलाकार बार बार दर्शा रहे थे। और जो डिवोटी होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह इसको लेकर जाते थे। इस प्रकार की मूर्तियों को अष्ट महाप्रतिहार्या कहते हैं। तो अब ये 8 इंसिडेंट्स है ना, इसके कुछ इंसिडेंट मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नेटिविटी का सीन है, विच इज बर्थ ऑफ सिद्धार्थ। आप ये देखेंगे कि उनकी कमर से सिद्धार्थ का जन्म हो रहा है। और यहाँ पे इंद्र, गॉड इंद्र इज कलेक्टिंग हिम on a tower. This symbolizes the first sermon at Sarnath, and here you can see the 2 deers. तो माना जाता है कि जो सारनाथ का जो जहाँ पे उन्होंने सरमन दिया, वहाँ वो डियर पार्क है। वहां उसको दर्शाने के लिए, पहले सरमन को दर्शाने के लिए, यहाँ पे धर्मचक्र और डियर भी दिखाते हैं। तो ये व्याख्यान मुद्रा में है। बुद्ध जब बुद्ध जमीन को टच कर रहे हैं, तो ये
उनके ज्ञान की प्राप्ति को सिंबलाइज करता है। जब उन्होंने मेडिटेशन किया, हफ्तों मेडिटेशन किया है, और तब उनको अल्टीमेटली ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसमें वो जमीन को छूते हुए दर्शाते हैं। और यहाँ देखिए जो गॉडेस अर्थ है, धरती माता है, वो एक पात्र में पानी लेकर आ रही है टू मार्क दिस इवेंट। अब हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट सर्वे तो दे दूं कि भारत में बहुत ही सुंदर परंपरा रही है मूर्ति कला की। तो हम बुद्धिज्म से अब हम हिंदुइज्म की ओर चलते हैं, और हिंदुइज्म में मैं गुप्ता पीरियड के 6th सेंचुरी के कुछ बड़ी ही सुंदर स्कल्पचर की बात करूंगी। ये 3 स्कल्पचर हमें मिलते हैं इस मंदिर में। ये देवगढ़ का मंदिर है, इसे विष्णु मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पे भगवान विष्णु से संबंधित 3 बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। देखिए आप, जो 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 रिलीफ है, हाई रिलीफ की कार्विंग है, वो अपने चरम सीमा पर है यहाँ पे। और ये जो एपिसोड्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष की कहानी है। यहाँ पे नर और नारायण बद्रीनाथ में तपस्या करते हुए दर्शाए गए हैं, और यहाँ पे भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि सृष्टि का क्रिएशन, ये सिंबल, जो ब्रह्मा का जन्म होता है, उसके पश्चात वो इस संसार का निर्माण करते हैं। फिर हमें ज्ञान की का दृश्य देखने को मिलता है। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज एक बार फिर से वो बद्रीनाथ जी वाला एक बार फिर से बताइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये आप जो देखेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है बीच वाला, इसको नर नारायण कहते हैं। और हम नर यानी कि अर्जुन को दर्शाता है। और देखिए नर को दिखाएंगे ना, ह्यूमन बीइंग को, तो 2 हाथों के साथ दिखा रहे हैं, और जो नारायण है उनको 4 हाथों के साथ दर्शाया गया है। और इसमें क्या होता है कि जब ये नर और नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे होते हैं, इतना पावन स्थल है कि स्वयं भगवान वहां पे तपस्या कर रहे हैं, और तब क्या करते हैं, इंद्र को घबराहट हो जाती है कि कहीं उनका सिंहासन उनसे छिन ना जाए, अगर ये इतने बड़े तपस्वी हैं। तो वो अपनी अप्सराओं को भेजते हैं इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन अप्सराएं तो तपस्या भंग नहीं करती, मगर जो नारायण है वो अपनी जांग पर एक लकड़ी उठाकर एक बहुत सुंदर स्त्री का चित्र बनाते हैं, और वो स्त्री बाद में उर्वशी के नाम से प्रसिद्ध होती है। उर्वशी एक बहुत फेमस अप्सरा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक उर्वशी अप्सरा का, यस मैम। हाँ, उर्वशी अप्सरा का जन्म होता है। यहाँ पे खास बात जो नोटिस करने वाली बात है, ये जो पहला कलाकार है भारत में, जो चित्रकार है पहला, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। तो हमारे देश में जो कला है उसको बड़ा सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि विष्णु अगर पहले चित्रकार है, तो जो जो नृत्य है, नृत्य का जो उद्भव हुआ वो स्वयं भगवान शिव से हुआ। तो कलाकारों की बहुत ही वैल्यू है हमारी संस्कृति में। और जो मंदिरों में आप देखेंगे ना, तो मंदिरों में बहुत सुंदर स्कल्पचर मिलते हैं दरवाजे पे। और दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये आपका जो सांसारिक से आपको आध्यात्मिक लोक में लेकर जाता है। अगर आप ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तो आप आध्यात्मिक कक्ष में पहुंचते हैं, गर्भगृह में पहुंचते हैं। तो ये इनके अलंकरण में का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ इन 2 मूर्तियों की बात करूंगी। ये जो 2 मूर्तियां हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, और ये है गंगा और यमुना। मंदिर के द्वार में गंगा और यमुना का जो अलंकरण होता है, जो उनको निर्माण किया जाता है, इस भाव से किया जाता है कि जब एक भक्त अंदर जाएगा दरवाजे से, तो सिंबॉलिकली वो गंगा और यमुना के जल से पवित्र हो जाएगा। तो ये भी हिंदुइज्म की खास बात है कि आप अगर नदी में नहा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे बस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं तो भी सिंबॉलिकली रिवर गॉडेसेस के जल से डिवोटी प्यूरिफाई हो रहा है। तो काफी फ्लेक्सिबल रिलीजन है ये। तो उत्तर प्रदेश जब मैं आपको अब गुजरात लेकर चलती हूँ, राजस्थान लेकर चलती हूँ, और राजस्थान में एक प्रसिद्ध स्थल है उसियान, जहाँ पे मंदिरों का कई समूह मिला है। तो यहाँ पे मंदिर अब पहले से अधिक विकसित हो रहे हैं, और देखेंगे कि एक ग्रुप में एक ग्रुप में हमें 5 मंदिरों का समूह मिलता है।
और अब मंदिर की दीवारों पर अलंकरण बढ़ रहा है। मैम कौन सी जगह बताई आपने? ओसियान, राजस्थान का ओसियान। ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो दीवारें हैं उस पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। दो जगह पे मूर्तियां मिलती हैं आपको। जो प्लेटफॉर्म है जगती जिस पर मंदिर खड़ा है उस पर भी, मंदिर की दीवार पर, और यहाँ पर देखिए ये इसको वरांडिका कहते हैं। जो गर्दन है मंदिर का, जो उसका जो लोअर पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को मिलाता है, उस वरांडिका, वहां पर भी हमें मूर्तियां मिलती है। तो किस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, चलिए देखते हैं। बहुत विकसित हो रहा है आइकोनोग्राफी, काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मैं सारे डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ मूर्तियों की बात जरूर करना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे कि ये इमेज, ये हरिहर का इमेज है, और जो हरि है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, और जो हर है वो भगवान शिव का प्रतीक है। तो जो सेक्टेरियन डिवीजन होता है ना, उसको कलाकार कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार शिव और विष्णु वास्तव में एक ही है, और वो उन दोनों का संयुक्त रूप दिखता है हमें यहाँ पे। तो जो विष्णु का साइड है वहां पे, वो क्योंकि विष्णु किंग है, तो वो मुकुट दिखता है और उनके हाथ में चक्र है, और यहाँ पे शंख भी देखने को मिलता है। ये सारे जो आइकोनोग्राफी वो विष्णु भगवान का है, और इधर आप देखते हैं शिव का की जटाएं और उनके हाथ में त्रिशूल। फिर हम इनको पहचानते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हाथी है, तो ये भगवान इंद्र का की मूर्ति है। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एपिसोड है त्रिविक्रम विष्णु का, जब भगवान विष्णु त्रिविक्रम का फॉर्म लेते हैं हैं और अपने इस विशाल रूप में पृथ्वी, आकाश और सबको लांग लेते हैं। आपको कहानी ये पता होगी, ये एक राजा थे बलि, राक्षसों के बहुत बड़े दानी थे, और अगेन इंद्र को डर लग रहा था कि कहीं उनका सिंहासन ना छिन जाए उनसे, तो भगवान विष्णु राक्षसों के की संख्या और उनके प्रभुत्व बढ़ ना जाए, इसलिए वो वामन का रूप लेते हैं और बाली से 3 पग जमीन मांगते हैं। बलि मान जाते हैं, मगर वो 2 पग में तो पूरा संसार लांग लेते हैं और कहते हैं तीसरा कहाँ रखूं। तो बलि भी महान दानी है, वो कहते हैं तीसरा आप मेरे सर पर रखिए। यहाँ देखिए उनके सर पर भगवान विष्णु तीसरा फुटस्टेप रखते हैं। तो ये त्रिविक्रम विष्णु का रूप है। यहाँ आप देखेंगे नीचे जो मैंने कहा था ना कि वो नेक वाला हिस्सा है, वहां पे कृष्ण लीला का दृश्य है। यहाँ पे देखिए देवकी सो रही हैं और कृष्ण को उनके पिता लेकर जा रहे हैं नंद के यहाँ, वासुदेव, और यहाँ पे वासुदेव नंद को कृष्ण को हैंड ओवर करते हुए। अब हम उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा का ये वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल है, 7th सेंचुरी में है हम, मगर आप देखिए कितना पूरे हिस्से पे, मंदिर के हर हिस्से पे मूर्तियां हैं। तो एक मंदिर में इतनी मूर्तियां हैं कि हम उसकी बात करने में हमें 4 दिन लग जाएंगे, और मुझे एक क्लास में पूरा का पूरा स्कल्पचरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बताना है। तो एनीवे कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो कुछ मूर्तियां, क्योंकि ये शिव का मंदिर है, क्योंकि ये शिव का मंदिर है, तो ज्यादातर मूर्तियां भगवान शिव से रिलेटेड है। और यहाँ आप देखेंगे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का अलंकार का डिपिक्शन है। कार्तिकेय को हम कैसे पहचानते हैं, उनका जो वाहन होता है, उनका जो व्हीकल होता है, वो एक पीकॉक होता है। फिर यहाँ पे गणेश है, गणेश को हम सब पहचानते हैं, उनका जो सर है वो हाथी का है। ये एक नीश में मूर्ति नहीं मिली है, मतलब समय के साथ मूर्तियां मिस भी होती हैं जगहों से। तो यहाँ पर था पार्वती की मूर्ति। फिर यहाँ पे कल्याण सुंदर, शिव और पार्वती के विवाह का दृश्य है, और यहाँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा को राक्षस महिषासुर के वध को करते हुए दर्शाया गया है। और ये जो मूर्ति है वो है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये, और रावण को तो बहुत बड़ा स्पेस दिया गया है। और यहाँ देखिए शिव और पार्वती बैठे हुए हैं। तो जब शिव और पार्वती के तपस्या का जो सांसारिक जीवन है उसको रावण भंग करता है, उसके पीस को, तो शिव क्या करते हैं, अपने एक अंगूठे से रावण को कैलाश में कैप्चर कर लेते हैं सालों साल। तब वो बहुत ही सुंदर तपस्या करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, और अल्टीमेटली शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने लगते हैं।
उड़ीसा से अब हम चलते हैं एलिफेंटा, वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र में है हम। एलिफेंटा बॉम्बे से के बिल्कुल पास है, एक आइलैंड में है और यहाँ पर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ जो सबसे खास बात है, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां मिली हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियां मिली हैं। और ये क्योंकि ये गुफा भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ हम शिव की आइकॉनोग्राफी प्रतिमा लक्षण को देख सकते हैं, उनके विभिन्न स्वरूप को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 9 बहुत बड़े स्कल्पचर मिले हैं वो इस प्रकार है। सदाशिव, जिसमें शिव को 3 मुखों के साथ दिखाया गया है। इसके दोनों तरफ हमें गंगा अवतरण का दृश्य मिलता है और शिव अर्धनारीश्वर को देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए ये तीनों की बात की हमने, ये 3 मूर्तियां दक्षिण दिशा में, और पश्चिम दिशा में हमें कल्याण सुंदर का दृश्य मिलता है, जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हो रहा होता है और उसके ऑपोजिट शिव तपस्या कर रहे हैं। फिर हम उत्तर में देखते हैं डांसिंग शिव। यहाँ पे शिव नृत्य कर रहे हैं और उसके सामने हम देखते हैं शिव एज योगी। तो 2 बिल्कुल विपरीत स्वभाव है शिव का। कहाँ वो डिवाइन शादी हो रही है, वो लाइक वो एक पारिवारिक जीवन में है, और यहाँ पे अंधक का संहार कर रहे हैं। तो और यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, तो वो योगी भी हैं। और जो ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे हमें उनके पारिवारिक जीवन का 2 बहुत सुंदर दृश्य मिलता है। वहाँ शिव और पार्वती गैम्बलिंग करते हुए दर्शाए गए हैं, और दूसरे में एक तरफ रावण अनुग्रह मूर्ति है, जहाँ पे रावण शिव और पार्वती के पीस को डिस्टर्ब करता है कैलाश पर। यहाँ देखिए जो एलिफेंटा की मूर्तियां क्यों इतनी प्रसिद्ध हैं, देखिए कि जो सौम्य स्वरूप है शिव का, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बैलेंस किया गया उनके फेरोशियस, उनके क्रोध स्वरूप के साथ, और उनके सुंदर स्वरूप, ये वाम देवता है जो कि पार्वती को सिंबलाइज करता है। तो श्रृंगार और वीर रस को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और ये जो दोनों अपोजिट एस्पेक्ट है, वो जो सौम्य स्वरूप है उसमें मिल जाता है। ये इमेज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये गंगा अवतरण का एक अद्भुत सॉरी ये अर्धनारीश्वर है, जिसमें आप देखते हैं कि जो बाईं तरफ है वो पार्वती को दिखाता है और दाईं तरफ शिव को दर्शाता है। और जो प्रकृति और पुरुष भारत में उन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। मेल और फीमेल को इक्वल दर्जा दिया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो सुंदर उसका जो रिलीजन में स्वरूप मिलता है, वो हमें अर्धनारीश्वर की मूर्ति में मिलता है। और ये जो मूर्ति आप देखेंगे वो है गंगा अवतरण का। तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, जो पारिवारिक जीवन में जो श्रृंगार है उसको दर्शाता है। तो ये शिव है, और क्योंकि शिव गंगा को धारण कर रहे हैं, और गंगा भी शिव का वरण करना चाहती थी, तो पार्वती नाराज है इस बात से। वो तो विश्व के कल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में ले रहे हैं, लेकिन इस बात से पार्वती नाराज है, वो शिव से दूर जा रही है। अगर शिव उनको अपनी ओर, देखिए अब दूर जा रहे हैं, बट वो जो डिस्टेंस है, जो टेंशन है दोनों का, वो क्षणिक है। तो ऊपर से वही कॉम्पोजिशन जो इनको दूर कर रहा है, ऊपर और नीचे से फिर वो दोनों जुड़ भी रहे हैं एक दूसरे से। तो बहुत ही जो ह्यूमन इमोशंस को, जो फैमिली लाइफ है, जो रिलेशनशिप है मेल फीमेल का, उसको बहुत ही सुंदर से तरीके से स्कल्पचर में व्यक्त किया। यहाँ पे पार्वती का शिव के साथ विवाह हो रहा है, तो शिव ब्राइडग्रूम है, बट एट द सेम टाइम वो डिवाइन है। आप देखिए बड़े रिस्ट्रेन तरीके से वो पार्वती को रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पे पार्वती के पिता हिमालय, वो उनका कन्यादान कर रहे हैं। और इस शादी में जो प्रीस्ट है वो ब्रह्मा है, और यहाँ पे चंद्रमा एक कलश में पानी लेकर पानी ग्रहण संस्कार में मदद कर रहे हैं। और ये एपिसोड है अंधकासुर वध मूर्ति की। तो ये एलिफेंटा की खास बात है कि जो विपरीत स्वरूप है शिव का, उन दोनों को बिल्कुल ऑपोजिट साइड में दिखाता है, एक साथ दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली जो ऑपोजिट नेचर है, वो सब शिव में विलय हो जा रहा है।
एलिफेंटा से हम चलते हैं, वेस्टर्न इंडिया से हम चलते हैं साउथ इंडिया, और ये पल्लव साइट है महाबलीपुरम। और यहाँ पर मैं आपको एक साइट दिखाऊंगी। ये महाबलीपुरम में जो एक मंदिर, 5 मंदिरों का समूह है, उसको हम पांडव रथ कहते हैं। और मैं, क्योंकि आर्किटेक्चर का क्लास नहीं है, तो मैं इनकी आर्किटेक्चर की बात नहीं करूंगी, मगर ये जो कुछ मूर्तियां हैं उसकी बात जरूर करूंगी। तो आप देखिए कि जो सबसे छोटा टेम्पल है यहाँ पे, वो बिल्कुल एक झोपड़ी की तरह बना हुआ है, जो गांव में हमें घर देखने को मिलता है उस तरह से बना हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि ये दुर्गा को समर्पित है मंदिर, तो जो द्वारपाल, जो अटेंडेंट है यहाँ पे, गेट कीपर्स हैं, वो फीमेल है, द्वारपालिका है। और पल्लव काल में जो दुर्गा महिषासुर मर्दिनी का डिपिक्शन होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां देखेंगे कि दुर्गा महिषासुर के सर पे खड़ी होती है, जो बाकी जगह उनको संहार करते हुए दिखाया जाता है, बट यहाँ पे वो युद्ध खत्म हो चुका है और दुर्गा विजयी हो गई है इस युद्ध में। तो यहाँ पे महिषासुर जो दानव है उसके सर पे खड़ी है। और अंदर जब इस चेम्बर के जाएंगे ना, तो इनके पीछे वाले भाग में ये मूर्ति है जहाँ पे दुर्गा का चित्रण है। और यहाँ पर देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वहां पे ये जो आदमी है वो अपना सर काट रहा है। तो पल्लव काल में शायद नरबलि की परंपरा रही थी, ये हमें इस मूर्ति से जानने को मिलती है। अब मैंने गंगा अवतरण आपको एलिफेंटा में दिखाया है, जहाँ शिव गंगा को अपने जटाओं में धारण कर रहे थे। ये हमारा एक दूसरा साइट है महाबलीपुरम में ही, और एक बहुत ही बड़े पत्थर पे गंगा अवतरण का पूरा जो कहानी है उसको कलाकार ने दिखाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो भागीरथ ने बहुत तपस्या की गंगा को धरती पर लाने के लिए। और माना जाता था कि गंगा, क्योंकि स्वर्ग में रहती थी, मंदाकिनी कहा जाता था उनको, वहां पे जब गंगा पृथ्वी पे आएंगी तो पृथ्वी, दिवाजी आपकी क्लास है, तो पृथ्वी कई टुकड़ों में बढ़ सकती थी। तो शिव की आराधना करते हैं कि वो शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण करें। और शिव यहाँ पर उनको दर्शाया गया, तो इसका मतलब है कि शिव ने भागीरथ को वो वरदान दे दिया है। अब यहाँ पे जो गंगा को दर्शाया गया है वो इस प्रकार दर्शाया गया। तो इसके ऊपर ना एक बड़ा सा टैंक है, और टैंक से पानी आता था। तो पानी जब आता होगा तो कैसे हमें पता चलता कि गंगा आएंगी? ये जो नाग हैं वो ऊपर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर गंगा को वेलकम करने के लिए। ये देखिए, नाग और नागिनी गंगा को वेलकम करने के लिए ऊपर आ रहे हैं नदी से, क्योंकि पानी आ रहा है। लेकिन कलाकार ने बहुत सुंदर से यहाँ पर एक हास्य रस को भी दर्शाया गया है। यहाँ पे भागीरथ और शिव को दर्शाया गया है। भागीरथ की तपस्या की बात करती है, मगर वो भक्तों को वार्न भी करता है कि सारे जो सन्यासी है वो भागीरथ नहीं है, कुछ इस बिल्ली की तरह भी है, जो कि तपस्या का ढोंग करके लोगों का नुकसान कर दिया। देखिए, बिल्ली ने कहा कि भाई वो तपस्या कर रही है, बूढ़ी बिल्ली ने, तो चूहे आए और चूहों को वो खा गई। तो ये 7वीं शताब्दी की बात है, और तब पाखंडी साधुओं से सावधान रहने के लिए कलाकार लोगों को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उस समय भी काफी ठग रहे होंगे जैसे आज होते हैं। महाबलीपुरम से हम आते हैं खजुराहो, और खजुराहो में भी अगेन बहुत सारे मंदिर मिले हैं। जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला है उसके हिसाब से यहाँ पे 54 मंदिर थे चंडेल काल के। लेकिन जो सबसे सुंदर मंदिर बचा है वो है लक्ष्मण टेम्पल। और लक्ष्मण टेम्पल को किंग यशोवर्मन ने बनाया था। और इस मंदिर में आप देखेंगे इसके जो 2 स्टोरी है, वॉल है, वो 2 भागों में विभाजित है। और यहाँ पे हमें बहुत सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती है। ये सूर्य सुंदरी है, ये नायिका है अपने आप को मिरर में देखते हुए। फिर ये जो कपल है, मिथुन कपल देखने को मिलता है। युग जो दंपत्ति का चित्रण है, बहुत ही सुंदर। तो और उसके नीचे का जो आप भाग देखेंगे ना, वहां पे भ्रष्ट मिथुन का भी दर्शाया जाता है। तो मिथुन जब यूनियन है मेल और फीमेल का, जब प्रोक्रिएशन के लिए है, तो उसको
सेक्रेट माना जाता है और उसको भगवान के साथ उसका चित्रण है। देखिए उसको ऊपरी भाग में यहाँ पे देवी देवता भी है और कपल्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन जब वो सिर्फ भोग के लिए है तो उनको भ्रष्ट मिथुन माना जाता है और उसको सबसे लोअर लेवल पे दिखाते हैं। तो संसार में जो कुछ भी है, क्योंकि मंदिर ब्रह्मांड का प्रतीक है, आपको सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। और इस अब पूरा बहुत ही भव्य तरीके से अलंकरण है यहाँ पे। 500-600 मूर्तियां होंगी इस मंदिर में, तो हम ऑब्वियसली इसकी बात नहीं कर सकते, मगर मगर आप देखेंगे कि काफी रिच ट्रेडिशन रहा है स्कल्पचर का। और जो इसका गर्भगृह है ये हम मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो ये मूर्ति है वो वैकुंठ विष्णु की मूर्ति है। और वैकुंठ विष्णु का जो कल्ट है कश्मीर से आया था और ये तांत्रिक वैष्णविज्म का एक फॉर्म है। यहाँ देखेंगे कि जैसे यहाँ जो सेंट्रल फिगर है, फेस है, वो सौम्य होता है, वो ह्यूमन फेस होता है, और एक फेस उसका लायन का होता है वैकुंठ विष्णु में और दूसरा बोर का होता है। ये दोनों इनकारनेशन है विष्णु के। तो ये 3 फेस वाला जो इमेज है वैकुंठ विष्णु का है। ये कल्ट कश्मीर से आया और सबसे पहला जो रेफरेंस हमें इस कल्ट का मिलता है वो कल्हन की राज तरंगिनी में मिलता है। फिर मैं ये आखिरी मंदिर ले रही हूँ क्लास में। आई थिंक वी हैव सम ओडिशा एग्जांपल आल्सो, बट ये राजराजेश्वर टेम्पल है और ये राजा चोल ने बनाया था। चोल काल में ये मंदिर बना और बहुत छोटे पीरियड में 1003 से 10। अगर आपको मौका मिले तो डिस्कवरी चैनल पे एक फिल्म भी है इस मंदिर से रिलेटेड, और आप देखेंगे कि किस प्रकार ये आर्किटेक्चरल मार्वल था अपने समय का भी और आज भी। तो हम खैर आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम इसके स्कल्पचर की बात करेंगे। तो यहाँ में मैं बताना चाहूंगी कि बाकी जो मंदिर रहे थे मिडिवल पीरियड में, जब हमें बहुत सारे मूर्ति देखने को मिलती है मंदिर की दीवारों पर, यहाँ पर जो ज्यादा फोकस था वो स्कल्पचर पे था और मूर्ति केवल 2 रो में मिलती है। ये देखिए ये जो वॉल है उसके 2 रो में मूर्ति मिलती है और ये 14 स्टोरी हाई बिल्डिंग, वेरी हाई बिल्डिंग। कोई भी बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं किया गया, ग्रेविटी से ये स्टैंड कर रहे हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर। 14 तल ऊंची इमारत बनाई गई है। तो इसमें जो खास बात है कि आप देखिए नीचे के जो दीवार है उस पे तो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया है, लेकिन ऊपर केवल एक ही स्वरूप है, वो है शिव के I'll just give you the name त्रिपुरांतक शिव का। एक ही फॉर्म को 23 बार दर्शाया गया, 23 बार दर्शाया गया। तो हम सोचेंगे कि भाई क्यों दर्शाया गया है, लेकिन उससे पहले हम नीचे की कुछ मूर्तियों को देख लें। तो अर्धनारीश्वर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार मूर्तियों को दीवारों पर सजाया जाता है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर है। फिर नीचे आप देखेंगे भिक्षाटन शिव है। जब सती के देहांत के पश्चात शिव चारों लोकों में भ्रमण कर रहे थे तो उनके सारे वस्त्र और सब कुछ त्याग देते हैं और नग्न अवस्था में कपाल को लेकर वो घूम रहे होते हैं पूरे विश्व में। तो वो उस फॉर्म को दर्शाया गया है। बहुत सारी डिटेल्स है, मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन आपको बस इन प्रतिमाओं से मैं परिचित कराना चाहती हूँ ताकि आप खुद बाद में इनका अध्ययन करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव के विभिन्न स्वरूप, जैसे लिंगोद्भव मूर्ति, जब विष्णु और ब्रह्मा में बहस हो रही होती कि सबसे जो महादेव कौन है, तब एक समुद्र से एक पिलर निकलता है और उसमें भगवान शिव वहां पे दर्शन देते हैं और उनको लगता है कि जो महादेव हैं वो स्वयं शिव हैं और वो नहीं। तो ये भी एक माइथोलॉजी में बहुत बड़ी कहानी है और काफी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कनोटेशन है इस स्टोरी की। बट अभी बस मैं आइकन पे फोकस कर रही हूँ। अब ये जो मैंने कहा कि 23 बार क्यों एक ही फॉर्म को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे एक्चुअली शिव त्रिपुरांतक के माध्यम से राजा राज अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बात करना चाह रहे थे। He wanted to speak about his own achievements because आपको अगर पता हो कि जो चोल राज थे उन्होंने श्रीलंका पर हमला किया। श्रीलंका
के कई भागों को अपने साम्राज्य में मिलाए। उन्होंने इंडोनेशिया पे अटैक किया। इंडोनेशिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। तो इस प्रकार वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि जैसे शिव त्रिपुरांता के एक बाण से उन्होंने तीनों विश्व को, तीनों लोकों को अपने कब्जे में किया, उसी प्रकार राज ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। तो रॉयल्टी और डिविनिटी का बहुत ही एमालगमेशन हमें मूर्ति कला में मिलता है। और ये फेमस टेम्पल है कोणार्क का सन टेम्पल। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत सुंदर मूर्तियों का अलंकरण, और जो अलग अलग बिल्डिंग्स है मंदिर में, देखिए आप यहाँ पे 3-4 बिल्डिंग्स है, तो उसका अलग अलग फंक्शन है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है वो रंग मंडप कहा जाता था। ये म्यूजिक और डांस के लिए होता था, इसलिए यहाँ पे जो मूर्तियां हैं ज्यादातर वो सुर सुंदरी और डांसर्स, म्यूजिशियंस और एस्थेटिक जो म्यूजिक की ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं उनका चित्रण है। ये मंदिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक रथ के रूप में कार्व्ड है, और इस रथ के जो पहिए हैं वो 12 पहिए हैं, जो कि 12 महीनों को दर्शाता है, और 7 घोड़े जो 7 दिन को दर्शाता है। 7 दिन को दर्शाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे कि ये हर प्रकार की मूर्ति है, और क्योंकि जो मिथुन कपल भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे 4 पुरुषार्थ जो है हिंदुइज्म में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब का इन मूर्तियों के साथ चित्रण है। मंदिर के दरवाजे, जैसे कि मैंने कहा, कि काफी अलंकृत होता है, और अभी जो पहले का अलंकरण है उससे अलंकरण और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विकसित हो गया, क्योंकि सूर्य का मंदिर है। तो यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो भगवान सूर्य से एसोसिएटेड है। देखिए ये सूर्य संभंग में बिल्कुल स्ट्रेट अवस्था में खड़े हैं, और उनका रथ 7 घोड़े खींच रहे हैं, और उनके बगल में एक और जो दूसरी मूर्ति वो सूर्य के पुत्र रेवांतक की है, और उनको घोड़े पर सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। और ये आखिरी मूर्तियां जो मैं ले रही हूँ इस क्लास में, वो है शिव नटराज की। इसमें आप देखेंगे कि एक मूर्ति में, शिव नटराज बहुत ही फेमस मूर्ति है क्योंकि एक मूर्ति में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का जो साइक्लिक जो चक्र है उसको दर्शाया जाता है। तो क्रिएशन, प्रोटेक्शन, डिसोल्यूशन, कंसीलमेंट और ग्रेस, ये तीनों ही शिव के इस स्वरूप से दर्शाए जाते हैं। आपको मैं डिटेल दिखाती हूँ। जो डमरू है शिव के हाथ में नटराज की मूर्ति में, वो क्रिएशन को सिंबलाइज करता है। जो फायर है वो डिस्ट्रक्शन को करता है, और शिव के पैर के नीचे जो ये छोटा सा होता है ना ड्वार्फ, एक बौना, वो इग्नोरेंस का प्रतीक है। और उनका जो 2 हाथ है, देखिए एक हाथ, अब ये कह रहे हैं कि अगर एक हाथ उनके पैर की तरफ को दर्शा रहा है, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, तो यानी कि प्रोटेक्शन का जेस्चर है। वो कहता है कि अगर शिव के शरण में आएंगे तो प्राणी अपने इग्नोरेंस से मुक्त हो सकता है, तो वो अभय से दर्शाया गया है। तो अगर शिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शिव के साथ शक्ति को भी इस ग्रुप में, नटराज के जो मूर्ति है वो परिवार मूर्ति होती है, पूरा परिवार दर्शाया जाता है उसमें। तो नटराज के साथ शिवकामी भी होती है जो कि पार्वती का स्वरूप है, और इन्हें 2 हाथों के साथ एक फूल लिए हुए दर्शाया जाता है। थैंक यू ऑल। नाउ इट इज ओपन टू क्वेश्चन। नहीं तो आप अगर देखेंगे जैसे गांधार वाला टाइम पीरियड रहा, यू नो, तो नॉर्थ वेस्ट में गांधार वाला टाइम पीरियड है, तो कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा। और कश्मीर का बुद्धिज्म, जैसे आप वो जो ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स का ट्रेडिशन है कश्मीर में, वो भी बहुत रिच है। इवन आपको मार्तंड मंदिर, जो सबसे पहला सूर्य मंदिर, जो सबसे विशाल सूर्य मंदिर है, वो तो कश्मीर से ही आ रहा है। बट आपने सही कहा कि मेरी लिमिटेशन रही, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है और इतने रीजन्स है कि सबको कवर करना मुश्किल है, वो भी 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर में। तो नेक्स्ट टाइम लेकिन मैं जरूर मैं देख पा रहा था कि एक एक आइकॉन को जिस तरीके से आपने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से डिटेल बताया, जैसे आपने बताया लॉर्ड विष्णु के अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्रह्मा निकल रहे हैं, मुझे इमीडिएट उस समय वो स्टोरी याद आने लगी। ब्रह्मा जी सार्कास्टिक स्माइल करते हैं, वेदर वी टू आर ओनली हियर इन दिस यूनिवर्स। विष्णु कहते हैं नहीं जी, उनको और एक पावर है महादेव। ऐसा आपने खूब अच्छा बताया मैम। अब हम ओपन करते हैं, इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। मोस्ट वेलकम टीचर्स। थैंक यू।
यस मैम, मैंने पहली बार ऐसी ट्रेनिंग लगाई है, और जो आपने मूर्तियों का जैसे जैसे बताया और इतना अच्छे से बताया, मैंने एक भी स्लाइड मिस नहीं की। हर एक स्लाइड को जूम जूम जैसे आपने बोला वैसे वैसे देख रहे थे। और सबसे अच्छा लगा मुझे बुद्धा का, जब आपने बताया कि उनके हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। सर Thank you so प्लीज much. आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मतलब सभी ग्रुप मेंबर्स को ग्रुप में जरूर पीडीएफ भेज दें। इतनी अच्छी लगी है कि हम इसको चाहते हैं कि हम इसको बार बार देखें। और स्पेशली आपका लेक्चर मैम बहुत अच्छा आपने बताया। Thank you so much. Thank you so much. मैम आपने जो वामन अवतार बताया था, जो पग मांगते हैं 3 फुट, 3 जमीन मांगते हैं 3 पग की, जी जी तो वहाँ पे जो बलि का आपने बोला था, तो उसमें वो जो बलि का करेक्ट बताया आपने, पर वो जो दीपावली का सीजन रहता है तब बलि प्रतिपदा दिन मनाया जाता है, जी जी क्योंकि भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था कि मेरा एक दिन होना चाहिए, तो तब बलि के जो एक दिन था वो बलि प्रतिपदा दिन मनाया जाता है। दीपावली के जो 5 दिन इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो इतना एक्सेप्ट कर रहा था कि उसमें थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाता था। जी जी तो वहां पे एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, जो बलि थे, हाँ डीमन होने के बाद भी हाँ, वो अपने दान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। बराबर है। और इंटरेस्टिंगली वो भगवान विष्णु ऑब्वियसली उनसे बहुत ही प्रभावित थे। इनफैक्ट हाँ 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 का जो कहना था और जो देवताओं की चिंता थी कि बलि तो महान हाँ राजा है, लेकिन जो हाँ जो डीमन का जो बेसिक प्रकृति होता है वो पूरी तरह से हाँ खत्म होगा या नहीं, उसकी चिंता हाँ थी। उसी के जो बलि के ऑफस्प्रिंग्स होंगे हाँ वो कैसे होंगे, वो शायद संसार के लिए अच्छे ना हो। और प्लस जो वहां पे शुक्राचार्य हैं, बलि के हाँ, जो गुरु हैं, गुरु का है, देवों से बनता नहीं है। तो ये सारे बराबर है। कंसर्न से जब भगवान विष्णु ने सोचा कि बलि को सबड्यू किया जाए, और उनकी परीक्षा भी थी, बलि को भी मोक्ष मिला। जब भगवान बराबर है। विष्णु से उनकी मृत्यु हुई तो वो उनको मोक्ष मिला है। तो बलि आप देखिए, तो बलि की जो जो दान की जो एबिलिटी है, उसको हाँ भगवान को दान मांगना पड़ रहा है उनसे। भगवान विष्णु जो पूरे संसार को पालन कर रहे हैं, उनको दान मांगना पड़ रहा है। और शुक्राचार्य बलि को वार्न करते हैं। वो कहते हैं कि आप ये विष्णु है वामन के रूप में, और ये आपको ठगने आए हैं। तो वो बलि कहते हैं कि जब भगवान ही मुझसे मांगने आए तो इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा। राइट, वो जानते हुए भी भगवान विष्णु को चाहते तो नहीं देते दान। ठीक है, बराबर। और वो राजा रहते, बलि को कोई हरा नहीं सकता था, मगर उन्होंने दान दिया। तो भगवान विष्णु स्वयं बहुत ही प्रभावित है उनसे। और एक दिन उनका होना तो मतलब वो बलि तो वो एक महान राजा थे, डीमन होने के बाद भी वो किस राइट, प्रकार का कार्य कर रहे थे, वो हम सबके लिए मतलब एक इंस्पिरेशन की बात है। और जो दान की जो इम्पोर्टेंस है भारतीय संस्कृति में, हाँ उसको बताता है। तो एक दिन होना तो, और उनकी पूजा अर्चना जरूर होती होगी, वो होना भी चाहिए। नहीं, हाँ, मुझे लगता है। दीपावली में 5 दिनों में से उनका एक दिन रहता है, बलि प्रतिपदा दिन बोला जाता है मैम उसको। हाँ, अब वैसे इस दिन की जो महत्ता है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट आई वुड हाँ नो मोर अबाउट इट, सो थैंक यू फॉर हाँ, टेलिंग मी। ओके मैम। इनफैक्ट मैं और रिसर्च करना चाहूंगी इस बारे में, बट देन ऑफ कोर्स बलि को भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी महानता को हाँ माना है। और हाँ, वो जानते भी, असुरों के थे ना मैम, असुर की जी तरफ असुर से के थे। थे, असुर के थे फिर भी। और देखिए भगवान को दान मांगना पड़ा उनसे। हाँ मैम नमस्कार। मैं हेलो देश से डॉक्टर देश दीपक शुक्ल बोल रहा हूँ। जी क्या मैं आप मुझको सुन पा रही हैं? जी जी हाँ मैम, सुंदर आपने वर्ष की झांकी हमारे सामने की है। तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया है, क्या वो उपयुक्त है? इसके बारे में आपका मत मैं लेना चाहता हूं। रचना के लिए ही बनाए गए थे, अथवा हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति या पौराणिक संस्कृति का संरक्षण और उसका संवर्धन आगे के लिए किया गया? ये दोनों मोटिव हो सकते हैं इसके क्या? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, वो धार्मिक महत्व तो है ही, मगर एक जो दूसरा है ना, आज के समय में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो टीचिंग का माध्यम है, वो बहुत है। आपके पास किताबें हैं और लैपटॉप है और व्हाट नॉट, आज तो बहुत कुछ है। मगर उस समय जो ये जो मूर्तियां थी और जो इनमें कथाएं हैं, वो कथाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये मंदिर शिक्षा के केंद्र थे।
तो ये मूर्तियां केवल पूजने के लिए नहीं थी, बल्कि उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी थी। और सर्टेनली वो एक युग के लिए नहीं, बल्कि उसको बहुत सारे कालों के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहा है। तो वो डेफिनेटली वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। टेम्पल वाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। धन्यवाद। आपकी सोच सही है। हेलो नमस्कार मैडम, मैं गुजरात जामनगर से हेलो डॉक्टर भावेश व्यास बोल रहा हूँ। जी आप सुन पा रही है जी? हाँ जी, हाँ जी 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 व्यास। मैम, आपने एक बुद्धिज्म के टाइम पर जो मूर्तियां बनी उसमें बताया कि जो जिस क्षेत्र में मूर्तियां बनी उस क्षेत्र के प्रभाव उन मूर्तिकारों पर रहे और वो हमें मूर्ति पर दिख रहे थे। जैसे वो मलमल का कपड़ा है, या रोमन या सिकंदर की शासन के जो उस टाइम का था तो दिख रहा था मूर्तियों में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बनाने वाले थे उनको वाकई में पता नहीं था कि बुद्ध या उसके पहनवेश या उससे जुड़ी हुई कथाएं क्या थी, तो सिर्फ दूसरों ने बताया इस आधार पर बना दिया, तो ही ये डिफरेंस आएगा ना, अदरवाइज कैसे आएगा? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो बनाने वाला कलाकार है, और मैं यहाँ पे ना एक आपको एग्जांपल देती हूँ इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो भारत में जो हमारा कुतुब कॉम्प्लेक्स बना रहा था, मस्जिद है, पहली बार मस्जिद को बनाने वाले जो कारीगर थे वो यहाँ के लोकल लोग थे, जिनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जो उनको बताया जा रहा था उसका वो अनुकरण बहुत सुंदर तरीके से कर पा रहे थे और बहुत ही सुंदर मस्जिद बना दी। तो इसी प्रकार जो वहां जब बुद्धिज्म पहली बार जा रहा है, जब लोग सीख रहे हैं, और बुद्ध को किसी ने देखा नहीं, और जो शास्त्र है बुद्धिस्ट लिटरेचर, उनके फीचर्स के बारे में है कि भाई वो बहुत लंबे थे, उनके हाथ बहुत लंबे, हाथ उनके घुटने तक आते थे, कान लंबे थे, उनके कुछ मार्क्स थे। तो वो जो कथाएं हैं, जो कैनन्स थे, उसको कम्युनिकेट किया पेट्रन ने, और उसी के आधार पर कलाकार ने बनाया। मगर उसका फॉर्म कैसा रहेगा वो तो आसपास जो उन्होंने देखा उसके हिसाब से बना दिया। अब आप चाइना में देखेंगे बुद्ध के इमेज तो बिल्कुल चाइनीज फीचर्स है उनके। साउथ ईस्ट एशिया में देखेंगे, अगर बोरोबुदुर या थाईलैंड में देखेंगे, तो वहां के जो लोकल फीचर्स है फिजियोग्नोमी की, वो दिखती है। तो कलाकार का जो डायरेक्ट अनुभव नहीं रहा हो, ये तो बहुत पॉसिबल है। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू संदीप जी। अब मुझे आपके यहाँ आना भी है। बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी, तो हमें समाप्त करें और मैम को वहां से निकल के हमारे कैंपस तक पहुंचना भी है। टीचर्स बाकी शेष डिस्कशन और जो लेसन प्लान बाकी बातें भी हम करेंगे, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है मिथुन जी, समाप्त करें प्लीज। प्रतिभागियों को जो इंटरेक्शन रहा काफी महत्वपूर्ण रहा। आपके मन में जो प्रश्न था, उम्मीद है कि उसका उत्तर आपको मिल चुका है। तो इसी के साथ मैं सविता जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सीसीआरटी की ओर से, और ये हमारे प्रतिभागियों की ओर से। आपका जो निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए पुनः आपको आभार सीसीआरटी में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। सो मच मिथुन जी, थैंक यू सो मच संदीप जी, मुझे ये मौका देने के लिए, और जो शिक्षक जो हमारे देश की नींव रखते हैं उनसे बात करने के लिए जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ सीसीआर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल टीचर्स।